Hello dear students, my name is Professor Pritesh Veera and I have been teaching economics for the last 10 years. I teach at CA Foundation, CA Inter and of course at CS EET levels. Now today we are going to start with one of the most important topics in your economic career, not just CS EET. But as a student of economics, we should all know what do we mean by national income. तो बेटा नेशनल इनकम के बारे में सुना तो जरूर होगा, बहुत सारे लोगों ने नेशनल इनकम पढ़ा भी होगा. तो चलिए मुझे बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इनकम. चलो इन दोनों वर्ड्स को ब्रेक कर देते हैं. ये जो कॉन्सेप्ट है, लेट अस डिवाइड दिस इनटू नेशनल एंड इनकम. नाउ विच वर्ड डू यू अंडरस्टैंड मोर? सर ऑब्वियसली पैसा, इनकम. सो लेट अस टॉक अबाउट द वर्ड इनकम. नाउ बेटा, whenever you talk about the word income, can I say that anything that comes in is called as income? I repeat, anything that comes in is called as income. पर बेटा इनकम के दो कैटेगरीज होते हैं. इनकम का एक कैटेगरी होता है बाय द नेम ऑफ अर्न्ड, दूसरा होता है बाय द नेम ऑफ अनअर्न्ड. So beta, income can be divided into two parts, earned income and unearned income. Now when I talk about earned income, simple भाषा में earned मतलब मेहनत का इनकम, unearned मतलब फुकट का इनकम. तो बेटा इन दोनों में फर्क क्या है? Can I say के earned income will be when you produce or when there is production of goods and services. तो बेटा अगर goods and services produce होंगे तो उसके बदले में आपको जो पैसे मिल रहे हैं, that will be termed as a part of your earned income. So beta, can I say that earned income will be achieved only after the production of goods and services? Whereas जब भी हम अनअर्न्ड इनकम के बारे में बात करते हैं तो अनअर्न्ड इनकम इज अर्न्ड और अनअर्न्ड इनकम इज रिसीव्ड आउट ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन. मतलब अनअर्न्ड इनकम में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है. तो चलो समझने का कोशिश करते हैं. बेटा whenever we talk about earned, can I say it is for production of goods and services? बोलो ए, yes or no? हाँ बेटा, यहां पर मैं जो ये लेक्चर ले रहा हूं, can I say it is a creation of a service? अच्छा, am I doing this for free? No, I will be getting paid for it. मतलब मेरे काम के बदले में मुझे पैसा मिल रहा है. ये जो पैसा मिला वो earned income है. अच्छा, आप लोग कोई मेहनत कर रहे हो? हाँ सर, दिन के 6-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड्स का इंतजार कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई हो गई है. बेटा ये मेहनत का बात कर रहा हूं. When I talk from an economic point of view, we have to talk from the point of view of production. Productive activity होनी चाहिए. तो बेटा आप जो घर पे बैठकर मेहनत कर रहे हो वो पढ़ाई में है. क्या कोई गुड क्रिएट हुआ? ना. क्या कोई सर्विस क्रिएट हुई? ना. फिर भी आपके डैड मॉम आपको पैसा देते होंगे. नाउ कैन आई से दैट इज योर अनअर्न्ड इनकम. जो आपको पॉकेट मनी मिला वो अनअर्न्ड है. क्यों अनअर्न्ड है? क्योंकि आपने कोई गुड्स या सर्विस क्रिएट नहीं किया है, फिर भी पैसे अंदर आ रहे हैं. एनीथिंग दैट कम्स इन is called as income. But for you what has come in is unearned income. For me what has come in is earned income. I hope I am clear with that. Then beta
अर्न्ड इनकम को हम कहते हैं एज इकोनॉमिक इनकम। क्या बोलते हैं बेटा? अर्न्ड इनकम इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक इनकम, whereas unearned income is called as a transfer payment or it is termed as a transfer income. So बेटा बेसिकली ये जो क्लासिफिकेशन है earned and unearned का is based on production of goods and services. If goods and services are produced, then it is earned. If goods and services are not produced, then it is termed as unearned income. I hope I am clear with that. Now, to give you a little bit more clarity, beta, can I say economic income is a two-way income या two-way transaction? मैंने जेके शाह को लिए लेक्चर लिया, उन्होंने मुझे उसके लिए पेमेंट दिया, so it is a two-way transaction. But जब भी हम ट्रांसफर पेमेंट का बात करेंगे तो इट इज अ वन वे ट्रांजैक्शन। आप कुछ करो मत करो फिर भी आपके पिताजी आपके लिए पॉकेट मनी देंगे। आई होप आई एम क्लियर डियर स्टूडेंट्स। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्न्ड एंड अनअर्न्ड इनकम। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनकम इन जनरल। If I am earning income, can I say it is my individual's income or my personal income? जो मैं कमा रहा हूं वो मेरा इनकम है। Can I say I may have multiple sources of income? I may be getting a fee, a salary, I may be getting rental income. मैंने किसी को पैसा लोन पर दिया होगा तो शायद इंटरेस्ट का इनकम। So there are multiple sources of income for me. But when I am earning that income, it is called as an individual's income. जरूरी है कि कोई एक इंडिविजुअल ही पैसा कमाए? नहीं, मेरे फैमिली के अंदर हम 4 लोग हैं और हम चारों के चारों काम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट करते हैं, मतलब इकोनॉमिक इनकम अर्न करते हैं। यस और नो? इसका मतलब क्या वो इंडिविजुअल्स इनकम है? क्या वो पर्सनल इनकम है? नहीं। कैन आई से इट विल बी टर्म्ड एज माय फैमिलीज इनकम। सो बेटा इंडिविजुअल का इनकम होता है, फैमिली का भी इनकम होता है, तो वैसे ही एक कंपनी का भी इनकम होता है। आज जेके शाह क्लासेस एक कंपनी है, रिलायंस एक कंपनी है, टाटा एक कंपनी है। ऑल दीज कंपनीज आर ऑल्सो अर्निंग मनी, which means that it will be termed as a company's income. तो वैसे ही बेटा आपको नहीं लगता है कि हमारे देश का भी इनकम होगा? जो देश का इनकम होता है उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। सो बेटा what are we going to study in this chapter? Obviously we have to talk about the nation's income. The way there is an individual's income, the way there is personal income or a family's income, similarly there will be nation's income. अब बेटा मुझे पैसे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मैं काम करने के लिए जाता हूं। मेरे फैमिली को पैसे क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मेरा फैमिली काम करने के लिए जाता है। तो जब हम कोई काम करने जाते हैं और उसके बदले में हमको पैसे मिलते हैं तो हम उसे अर्न्ड इनकम कहते हैं। तो सवाल ये आता है, क्या देश भी काम करने को जाता है? नहीं। Does the nation go to work? No. Then what is the concept of national income? रुको जरा, सब्र करो, बताता हूं। But more importantly, I want to discuss about an example of earned income and unearned income. बेटा एज आई टोल्ड यू दैट अर्न्ड इनकम, मैं काम करने के लिए गया तो मुझे पैसे मिले, पर आप जब घर पे बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी आपको पैसे मिल रहे, दैट विल बी टर्म्ड एज एन अनअर्न्ड इनकम। नाउ जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो अर्न्ड इनकम इज कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम, whereas unearned income is not calculated in national income. Sir, ऐसा क्यों?
बिकॉज जब भी हम अनअर्न्ड इनकम को कैलकुलेट करेंगे, इफ अनअर्न्ड इनकम is calculated while estimating national income, then it will lead to double counting. सर डबल काउंटिंग, एक ही इनकम को जब दो बार काउंट किया जाता है या मल्टीपल टाइम्स काउंट किया जाता है तो हम उसे कहते हैं डबल काउंटिंग। ये कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, फादर ने 1 लाख रुपी अर्न किया, उसने गुड्स प्रोवाइड किए, उसने सर्विसेज प्रोवाइड की और उसको उसका सैलरी मिला 1 लाख रुपी। कहना ऐसे ये जो फादर का इनकम है वो अर्न्ड इनकम है, यस और नो? अब फादर ने मदर को पैसे दिए घर चलाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द फादर हैज गिवन 50,000 rupees to your mother to run the house. Can I say this money is given out of love, care, affection, fear? मजाक था बेटा, बट जाने दो। कहने का मतलब यह है कि your father is giving your mother the money probably out of love, care, affection, which means, can I say that over here there is a transfer of money? आप बोलोगे नहीं सर, मम्मी कितना काम करती है घर में, बर्तन धोती है, लादी पोंछती है, खाना बनाती है, उसके लिए पैसा मिला। बेटा, इज दैट योर मदर्स प्रोफेशन? क्या वो किसी और के लिए भी यही काम करके फी चार्ज करती है? नहीं ना। जब आपकी मम्मी आपके लिए कुछ काम करती है तो ऑब्वियसली इट इज आउट ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन। सो इफ योर फादर इज गिविंग दिस मनी टू योर मदर, is that her salary? Is that for providing goods and services? No. I hope I am clear with that. So बेटा, अगर आप बोलोगे कि ये जो 50,000 rupees है वो unearned है, yes or no? Can I say that this 50,000 rupees is unearned by your mother? तो क्या अपने देश का नेशनल इनकम 1,50,000, क्या अपने देश का नेशनल इनकम 1,50,000 है? नहीं ना। तो अपने देश का नेशनल इनकम कितना है? सर जितने का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ। कितने का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है? तो डैडी को जो पैसा मिला है वो अर्न्ड है। सो बेटा, नेशनल इनकम के अंदर अनअर्न्ड इनकम is not included because it results into double counting. Can I say ये 50,000 रुपए वो ही 1 लाख रुपए में से आया है? Yes or no? I hope this concept of income and its types are clear. Now let us go to the next concept. Let us understand the nation's income. हमने ऑलरेडी बोला था कि पर्सनल इनकम होगा, फैमिलीज इनकम होगा, वैसे ही एक नेशन का भी तो इनकम होगा ना। बट उसके पहले बेटा, आई वॉन्ट यू ऑल टू टेल मी, हैव यू ऑल हर्ड द वर्ड कंट्री? यस, सुना है। हैव यू ऑल हर्ड द वर्ड नेशन? यस, ये भी सुना है। Have you all heard the word economy? हाँ सर, ये तीनों वर्ड सुने हुए हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है ना। एक क्या तीनों का मतलब एक ही होता है? बोलो। इस कंट्री, नेशन एंड इकोनॉमी are all of them the same or they are not the same? बेटा, they are not the same. So when I talk about the word country, तो बेटा कंट्री इज नथिंग एल्स बट द जोग्राफिकल बाउंड्री। बेटा मेरे को इंडिया का नक्शा इतना ही बनाने को आता है, सॉरी। सो कैन आई से दैट दिस इज आवर कंट्री, दिस इज नथिंग एल्स बट द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आवर नेशन। सो बेटा जो जोग्राफिकल बाउंड्री है वो कंट्री होता है। हाँ हाँ। तो बेटा
अब ये कंट्री के अंदर केनाई से कुछ लोग रहते होंगे जिसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। तो बेटा जब आप कंट्री के अंदर पॉपुलेशन को ऐड करोगे तब वो बनता है एक नेशन। सो बेटा कैन आई से दैट अपने कंट्री में तो पॉपुलेशन का जरा भी कमी नहीं है, भर भर के भर भर के भर भर के। कैन आई से इंडिया इज अ कंट्री विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़। अब बेटा कैन आई से हमारा तो नारा ही है, हम दो हमारे गिनते रहो। सो अपने कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है। अब कंट्री में जब पॉपुलेशन ऐड हो गया तो हमने उसे कहा नेशन। अब कैन आई से दैट इन लोगों के बीच में होंगे कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, they will interact with each other, they will buy and sell goods and services। ये बोलो हाँ के हाँ हाँ। मतलब कैन आई से जब नेशन के अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होंगे, whenever there are economic transactions between the people of the nation, then it becomes an economy। So बेटा चैप्टर का नाम क्या था जरा देखो तो। कैन आई से चैप्टर का नाम था नेशनल इनकम। क्या हम लोगों ने इनकम को पहले समझा? हाँ, अर्न्ड अनअर्न्ड, मेहनत का, फुकट का, फैमिली का इनकम, इंडिविजुअल का इनकम। हाँ सर समझ में आ गया। उसके बाद मैंने आपको समझाया व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेशन। तो बेटा अब आप इन दोनों वर्ड को जोड़ लो। व्हाट इज नेशनल इनकम? Can I say national income is the income of the nation? But how does nation earn an income? बेटा मैं काम करने के लिए जाता हूं तो मुझे पैसे मिलते हैं, मेरी फैमिली काम करने के लिए जाती है तो मुझे पैसे, मेरे फैमिली को पैसे मिलते हैं। क्या मेरा देश काम करने को जाता है? नहीं। तो बेटा हाउ डज द नेशन अर्न इनकम? इट इज द पीपल ऑफ द नेशन हु अर्न इनकम। Yes or no? So beta I'll repeat once again, what is a national income? National income is the income of the nation, but nation is made up of people. Why do people get an income? ऐसे ही मुफ्त में, फ्री में? No, because they work, they contribute, they produce goods and services, they are involved in an economic activity. Yes or no? So either they will work as a laborer, landlord, capitalist, or as an entrepreneur, which means they will get money in the form of rent, wages, interest and profits। देखो बेटा अगर लैंडलॉर्ड रहेगा तो उसको रेंट मिलेगा, अगर लेबरर रहेगा तो उसको वेजेस मिलेगा, अगर कोई पैसे को लोन पर देता है, कैपिटलिस्ट है, तो उसको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा, एंड अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको प्रॉफिट्स मिलेगा। कैन आई से दे आर कॉल्ड एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट फैक्टर पेमेंट। yes or no? So can I say they will earn money in the form of rent, wages, interest or profit? Why are they getting this money? Because they have contributed, they have produced the goods and services। मतलब बेटा उनको इनकम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया। Higher the output, higher the income, lower the output, lower the income। बोलो स्वाहा। yes, no, clear or not clear? So इससे क्या समझ में आया बेटा? That income is equal to output, but we also know one thing, that one man's income is another man's expenditure। बेटा आज अगर मेरा इनकम हो रहा है तो किसी और के लिए खर्चा है। डोंट यू थिंक दैट इज जेके शाह? सो बेटा जेके शाह's expenditure
is my income. My expenditure will be somebody else's income. मैंने ये पैसे ग्रोसरी वाले को दिए घर चलाने के लिए. अब ग्रोसरी वाले का इनकम हुआ, मेरा एक्सपेंडिचर हो गया. ग्रोसरी वाला ये पैसा आगे देगा उसका माल खरीदने के लिए, तो अब ग्रोसरी वाले का एक्सपेंडिचर विल बिकम किसी और का इनकम. So beta, what is the overall conclusion that you can make? That income of one person is the expenditure of another person, and therefore I can say that if income is equal to output, if income is equal to expenditure, therefore income is equal to expenditure, which is equal to output. A yes or no? And beta, this is what I exactly mean by what a national income is. National income is the income of the nation, but nation is made up of people. People get an income because they work, they contribute. How do they contribute? In the form of landlord, laborer, capitalist, or an entrepreneur. What do they get in return? They get rent, wages, interest, or profits. Why did they get this income? Because there was an output. So we said that income is equal to output. Then we said that one man's expenditure is another man's income, or vice versa. One man's income is another man's expenditure. So what is the overall conclusion that you make? That income, expenditure and output are synonyms over here when we study national income. Income is equal to expenditure is equal to output. Now, we all have heard another word which is by the name of economic growth. ये सुना है कि नहीं सुना है? क्या आपने इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में भी सुना है? हाँ. सो बेटा, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स. वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, द अदर इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो अब सवाल ये आता है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? तो बेटा, ग्रोथ इज ऑलवेज quantitative. Growth is quantitative, whereas development जो होता है ना बेटा is qualitative. Now how do we understand this beta? Very simple, don't worry. Growth, whenever you talk about the word economic growth, is nothing else but rise in output. जब जब आउटपुट बढ़ेगा तब तब देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा. Whenever the output falls, the economic growth will also fall. We all have heard that, sir, India grows by 7%, India grows by 10%, India's economic growth fell down to 6%. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे कंट्री का जो आउटपुट है वो अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा. अगर हमारे कंट्री का आउटपुट गिरेगा तो हमारे कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ भी गिर जाएगा. ए यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? नाउ, सो इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द राइज इन आउटपुट, then what is economic development? Beta, development is a broader term than growth. Economic development is equal to economic growth plus क्या बोला? welfare of the people. Can I say this welfare of the people is nothing else but qualitative? लोगों का भला करना, लोगों का भला होना, ये एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना, लिटरेसी रेट का बढ़ना, एजुकेशन बढ़ाना, अपने कंट्री के अंदर हॉस्पिटल्स का बढ़ना, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना, ऑल दीज आर द वेलफेयर इंडिकेटर्स. सो बेटा,
What is economic development? Can I say it is economic growth plus economic welfare. जब वेलफेयर और ग्रोथ ऐड होगा तब हमको एक कॉन्सेप्ट मिलता है जिसका नाम है इकोनॉमिक, क्या, चलो बताओ मेरे को, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो बेटा, the next concept that I taught you is by the name of economic growth and economic development. Economic growth is the rise in output, whereas economic development is not only the rise in output plus the welfare of the people. So output तो बढ़ना ही चाहिए, साथ ही साथ लोगों का वेलफेयर बढ़ना चाहिए. What are the welfare things? Can I say that increase in standard of living, increase in literacy rate, increase in employment, ये सारे चीजों से लोगों का वेलफेयर बढ़ेगा. Decrease in poverty, decrease in unemployment, डिक्रीज इन मोर्टेलिटी रेट, मरने का रेट अगर कम हो जाएगा तो ये सब के वजह से भी देश के अंदर वेलफेयर होगा. ए यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? सो बेटा, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी डिड वाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव whereas डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव. अब बेटा, हम ये इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर कैसे करते हैं? तो बेटा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज इक्वल टू राइज इन आउटपुट, और हमने बोला था कि अगर आउटपुट है तो इट इज इक्वल टू इनकम. तो बेटा, नेशनल इनकम इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. जब आपको नेशनल इनकम फाइंड करना है तो हमने क्या कहा था? नेशनल इनकम इज द राइज इन आउटपुट which is also equal to economic. Okay, this should be economic. Can I say growth? So economic growth is the rise in output. नेशनल इनकम के बारे में जब बात करेंगे, देखो बेटा, ग्रोथ मेजर करना है तो नेशनल इनकम मेजर करो. अगर नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो ग्रोथ हो रहा है, नेशनल इनकम अगर कम है तो ग्रोथ कम है. अब नेशनल इनकम कैसे मेजर करोगे? इट इज प्राइस इनटू क्वांटिटी. Now dear students, can I say that there are two possibilities? चलो एक एक करके बात करते हैं. For example, let us take the example of the year 2010, जहां पर मैं नेशनल इनकम फाइंड कर रहा हूं. प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 1000 एंड क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल इज 100. सो अपने कंट्री का नेशनल इनकम हो गया 1,50,000. ए यस और नो? कैन आई से प्राइस इंटू क्वांटिटी अगर करोगे तो नॉट 1,50,000, 1000 इंटू 100 विल बी इक्वल टू 1 लाख. तो अपने कंट्री का नेशनल इनकम 2010 में कितना था? इट वॉज 1 लाख रुपीज. अज्यूम दैट दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी. नाउ लेट अस गो टू द ईयर 2021. नेशनल इनकम का फॉर्मूला तो सिंपल है, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. लेट अस टेक ए ऑप्शन एंड लेट अस गो अहेड विथ बी ऑप्शन. ए ऑप्शन के अंदर ना बेटा, मैं प्राइसेस को बढ़ाकर कर देता हूं 1500, क्वांटिटी रखता हूं 100, तो अपना देश का नेशनल इनकम हो गया 1,50,000. This is one possibility. What is the another possibility? That the prices have remained constant and the output has increased to 150, and therefore again our national income is 1,50,000. So my dear students, now you have two options, option A and option B. बेटा, आप इन दोनों में से किसे ग्रोथ मानते हैं? सर दोनों में नेशनल इनकम तो 1,50,000 ही है, नेशनल इनकम बढ़ा मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया. क्या यही एक लौता लॉजिक है? नो माय डियर स्टूडेंट्स. कैन आई से इन द ए ऑप्शन द प्राइसेस हैव रिजन
and the quantity has remained constant. Don't you think this is an inflated national income? क्या बोला बेटा? This is an inflated national income. और क्या हमें हमारे कंट्री के अंदर inflated national income चाहिए? ये बोलो ना. So बेटा, this concept over here is the concept of false growth. ये नकली ग्रोथ है बेटा. दिस इज नॉट द रियलिटी. सर तो फिर रियलिटी क्या है? बेटा रियलिटी, ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज द राइज इन प्राइसेस के ग्रोथ इज द राइज इन आउटपुट. बेटा प्राइस बढ़ेगा तो देश का प्रगति होगा क्या? नहीं ना. अगर आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा. सो बेटा लॉजिकली अगर बताऊं, डोंट यू थिंक दैट ऑप्शन बी इज अ बेटर ऑप्शन? बिकॉज यहां पर प्राइसेस आर कांस्टेंट and the output is increasing. Rise in output is called as economic growth, and beta over here this is called as your real growth. तो बेटा जो अगला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया वो था फॉल्स ग्रोथ का और रियल ग्रोथ का. फॉल्स ग्रोथ के अंदर प्राइसेस आर राइजिंग, विच मींस इट इज एन इन्फ्लेशनरी नेशनल इनकम और एन इन्फ्लेटेड नेशनल इनकम. देयरफॉर आई गिव द वर्ड फॉल्स ग्रोथ. नहीं, प्राइस बढ़ने के वजह से नेशनल इनकम बढ़े ये मुझे मंजूर नहीं है. तो बेटा what will show you the true picture of the economy? That prices are constant and the output is rising. Why? Because the rise in output shows that there is a rise in economic growth. और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आउटपुट की वजह से बढ़ रहा है तो हम उसे कहेंगे रियल ग्रोथ. आई होप आई एम क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. Now, let us go to the next concept of what prices should we consider for national income. Beta, we all know that national income is equal to price into quantity. Yes or no? So, what am I going to teach you all is prices and quantity should be taken of which year? So prices and quantity of current year, or it should be taken at constant or base year. Constant and base are the same. So beta, should it be at current year or should it be at constant or base year? अब पहले तो ये समझो कि करंट ईयर का मतलब क्या, बेस ईयर का मतलब क्या. बेटा करंट ईयर इज द प्रेजेंट ईयर. सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम फॉर 2021, व्हाट इज योर करंट ईयर? 2021 विल बी योर करंट ईयर. सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज बेस ईयर? बेटा बेस ईयर is that economic year where there are not a lot of ups and downs. कुछ भी uneconomic activity नहीं हुआ हो, जहां पर बहुत सारे बदलाव नहीं आए हों. For example, can I consider 2016 as the base year? The answer is no. क्योंकि एक unusual activity हुआ था, demonetization. मित्रों, और 2000 का नोट आया, 500 और 1000 का नोट, टाटा बाय बाय, खत्म, फिनिश, ओवर. सो कैन आई कंसिडर 2016 एज अ बेस ईयर? नो. व्हाई कैन नॉट आई कंसिडर इट एज अ बेस ईयर? बिकॉज उसमें कोई तो एक अनयूजुअल इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ. तो हाउ विल यू डिफाइन अ बेस ईयर? बेस ईयर इज दैट ईयर जहां पर सब कुछ नॉर्मल हुआ हो. तो सर क्या ये पॉसिबल है कि पूरा साल में कोई गफला नहीं हुआ? देखो बेटा ये तो मुश्किल है. सो बेस ईयर का जो कैलकुलेशन है ना बेटा, दैट इज डन बाय द एनएसओ. उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. एनएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन.
So, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू मेजर नेशनल इनकम, और मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर बेस ईयर को डिटरमाइन करना भी उन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एज ऑफ नाउ बेटा 2012 इज कंसिडर्ड एज द बेस ईयर, एंड एज आई टोल्ड यू ऑल, जरूरी नहीं है कि पूरा एक साल को आपने बेस ईयर कंसिडर किया. आप थोड़ा पार्ट 2012 का ले सकते हो, थोड़ा पार्ट कोई और ईयर का ले सकते हो, और उसको आप कंसीडर कर सकते हो एज योर बेस. नाउ व्हाई डू वी रिक्वायर दिस बेस ईयर प्राइस? बिकॉज आई वांट टू कंपेयर विथ बेस ईयर एंड करंट ईयर. सो लेट मी टेक एन एग्जांपल. प्राइस या तो प्राइस होगा करंट ईयर का, क्वांटिटी भी या तो होगी बेस ईयर की या तो होगी करंट ईयर की. तो चलो आप मुझे बताओ बेटा, आप प्राइसेस कौन से ईयर के लोगे? अगर आप नेशनल इनकम फॉर द ईयर 2021 फाइंड कर रहे हो, तो क्या आप प्राइसेस भी 2021 के लोगे? हाँ सर, हाँ, करंट ईयर है ना सर, करंट ईयर है तो करंट ईयर का प्राइसेस. तो सर प्राइसेस भी करंट ईयर का, क्वांटिटी भी करंट ईयर का, तो अपने को मिल गया नेशनल इनकम भी करंट ईयर का. बेटा अगर इतना आसान होता तो मैं ये कॉन्सेप्ट लाता ही क्यों? Obviously you will not take the prices of the current year. नहीं. Why will you not take the prices of the current year? Because बेटा current year के अंदर prices may be inflated, prices may be deflated. क्या आपको inflated national income चाहिए? ना मुन्ना ना. क्या आपको डिफ्लेटेड नेशनल इनकम चाहिए? ना मुन्ना ना. आपको स्टेबल प्राइसेस चाहिए. और बेटा अगर आपको स्टेबल प्राइसेस चाहिए तो आपको बेस ईयर के प्राइसेस को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि करंट ईयर के अंदर तो शायद फ्लक्चुएशंस बहुत होंगे, चेंजेस हुए रहेंगे. यस और नो? I hope I am clear with you all. So beta, can I say prices will always be of which year? They will always be of the base year. तो अब सवाल ये आता है कि क्वांटिटी कौन से ईयर का लेंगे? सर क्वांटिटी भी बेस ईयर, क्योंकि क्वांटिटी भी ये साल बढ़ेगा, कम होएगा, फ्लक्चुएशन होएगा, इस साल झोल झपाटा होएगा. इज दैट द लॉजिक? बेटा अगर आपने प्राइसेस भी बेस ईयर के लिए, अगर आपने क्वांटिटी भी बेस ईयर का लिया, तो आपको नेशनल इनकम भी बेस ईयर का ही मिलेगा ना. अपने को कौन से ईयर का नेशनल इनकम फाइंड करना है बेटा? करंट ईयर का. तो कोई एक तो वेरिएबल ऐसा होगा ना जो करंट ईयर का होगा. यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, can I say that quantity will be of the current year and never of the base year? क्योंकि economic growth, national income is the rise in output. तो आउटपुट करंट ईयर का लोगे तो ही तो इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, तो ही तो नेशनल इनकम मिलेगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो मेरे को बताओ, नेशनल इनकम इज इक्वल टू price into quantity, but price of which year? Price of base year. Then quantity of which year? Quantity of current year. So बेटा हमने जो प्राइसेस लिए वो बेस ईयर के लिए, क्वांटिटी जो हमने ली वो करंट ईयर के लिए. इस नेशनल इनकम को हम बोलेंगे real national income. Why is this real national income? Because we have considered the current year's quantity, and the prices that we have taken are neither inflated nor deflated. They are at constant years prices. So बेटा जब prices base year के होंगे, quantity current year की होगी, तो आप क्या बोलोगे? It is called as real
नेशनल इनकम। तो सर अगर प्राइस इंटू क्वांटिटी दोनों ही अगर आपने करंट ईयर का लिया तो बेटा प्राइस भी करंट ईयर का, क्वांटिटी भी करंट ईयर का, तो ये भी तो नेशनल इनकम है। बट ये नेशनल इनकम को हम नॉमिनल नेशनल इनकम बोलेंगे। What is this national income called as beta? When the prices are of the current year and the quantity is also of the current year, then such kind of a national income is called as nominal national income. So, real national income is when the prices are of the base year and quantity is of the current year. एक वेरिएबल बेस ईयर का, एक वेरिएबल करंट ईयर का, तो हम उसे कहते हैं रियल नेशनल इनकम। When both the variables are of the current year, price as well as quantity, then it is called as nominal national income. I hope we all are clear. Now, let us study one of the most important concepts, that is national income at market price or national income at factor cost. तो बेटा नेशनल इनकम को मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करना है या नेशनल इनकम को फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी मीन बाय मार्केट प्राइस? बेटा मार्केट प्राइस इज द प्राइस विच इज ऑफर्ड इन द मार्केट। तो जब हम कोई चीज खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं और उस पर जो प्राइस होगी उसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस। नाउ व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेट अस टेक एन एग्जांपल। बेटा फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैन्युफैक्चरर हु प्रोड्यूसेस लिकर और ये लिकर का मार्केट प्राइस है फॉर एग्जांपल ₹100। अब ये 100 रुपीज में कैन आई से प्रोड्यूसर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बेटा मार्केट प्राइस का पार्ट इज प्रॉफिट। बोलो, इज मार्केट प्राइस का पार्ट प्रॉफिट? क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अपने को मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट दोनों समझना है, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट अस स्टार्ट विथ फैक्टर कॉस्ट। बेटा मैंने क्या बोला था? फैक्टर कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। yes or no? So beta if 100 rupees is the factor cost, not market price, factor cost, तो बेटा इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? कैन आई से इसके अंदर रेंट इंक्लूडेड है, इसके अंदर वेजेस इंक्लूडेड है, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है और बेटा वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। Why? Because you are talking about a factor cost. What is factor cost? It is the cost of factors of production. What are factors of production? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को मिलेगा रेंट, लेबरर को मिलेगा वेजेस, कैपिटलिस्ट को मिलेगा इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर लेकर जाएगा प्रॉफिट्स। अब मुझे एक बात बताओ, बनाने का खर्चा 100 रुपया लगा, पर क्या मैं इसे 100 रुपए में बेचूंगा? बेच सकता हूं क्योंकि मेरा तो प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूडेड है, पर गवर्नमेंट बेचने नहीं देगा। बिकॉज गवर्नमेंट विल एड इनडायरेक्ट टैक्सेस। गवर्नमेंट बोलेगा लिकर है, मेरे को इसको डिमोटिवेट करना है कंज्यूमर्स को ड्रिंक करने के लिए, तो मैंने चार्ज किया 30 रुपीज का इनडायरेक्ट टैक्स। तो बेटा मार्केट में जब ये बिकेगा तो मिलेगा 130 में। So dear students, now we have two prices. One is factor cost, one is market price. Factor cost is the cost of factors of production. Market price is the price at which the commodity will be sold in the market. और ये दोनों prices अलग है। Factor cost 100 रुपया है, market price 130 है। आप बताइए कि आप कौन सा consider करेंगे? Will you consider market price or will you consider factor cost?
तो बेटा लॉजिक बहुत क्लियर है और सिंपल है. यू विल ऑलवेज कंसिडर द फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज बेटा ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, कैन आई से ये कौन लेकर जाएगा? गवर्नमेंट. कैन आई से ये गवर्नमेंट के लिए एक ट्रांसफर पेमेंट है. गवर्नमेंट ने इसको कमाने के लिए कोई मेहनत नहीं किया है. डिड गवर्नमेंट कम एंड प्रोड्यूस लिकर? Was government landlord, laborer, capitalist or an entrepreneur while making this liquor? No. मतलब जो पैसा गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जा रहा है वो एक ट्रांसफर पेमेंट है. एंड बेटा वी ऑल नो that transfer payment is never ever included while estimating national income. Yes or no? So beta can I say market price से factor cost जाना है. Where are you? Market price. Where do you want to go? Factor cost. Market price is 130, factor cost is 100. How do I reach to factor cost? By deducting indirect tax. Yes or no? Why did I deduct indirect tax? क्योंकि indirect tax earned है कि unearned है. And बेटा unearned income is never calculated while estimating national income. So market price minus indirect tax will give you factor cost. चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं. Sir, what if you are not charging a tax? There can be another possibility. For example, you are producing certain medicines. Your factor cost of producing these medicines is, say for example, 150 rupees. Now, in this 150 rupees, there is rent, wages, interest and profit. Yes or no? अब मेरे को एक बात बताओ, कैन आई से गवर्नमेंट कुछ लोगों को सब्सिडी देगा? बेटा सब्सिडी इज अ ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द कंज्यूमर्स और टू द प्रोड्यूसर्स. तो बेटा यहां पर ये सब्सिडी मिल रही है एक प्रोड्यूसर को और गवर्नमेंट बोलता है कि भाई मार्केट में यू हैव टू सेल इट एट 100. सो क्या प्रोड्यूसर 50 रुपए का नुकसान बेयर करेगा? उसको बनाने के लिए लगा 150 रुपीज. यस और नो? इसके अंदर उसका रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो क्या वो खुद का प्रॉफिट मार्जिन कम करेगा? नहीं ना. इसका मतलब ये जो 50 रुपीज कम करने को बोला गवर्नमेंट ने, ये कॉम्पनसेट कौन कर देगा? गवर्नमेंट, बाय द फॉर्म ऑफ सब्सिडी. So over here, can I say this is given by the government to the producer? अच्छा, अब ये जो गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर को दिया आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन दिया कि उसके मेहनत का पैसा दिया. क्या उसको 100 रुपया दिया? नहीं, उसको सिर्फ उतना ही रुपया दिया जितना उसको मार्केट से कम मिलने वाला था. मार्केट से गवर्नमेंट इज सेइंग 100 रुपीज लो, बाकी का 50 रुपया मेरे से लो, तो आपका फैक्टर कॉस्ट रिकर हो गया. एंड फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग एल्स बट योर मेहनत का इनकम. मतलब कैन आई से द सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर is earned and therefore it is included while estimating national income. yes or no? तो बेटा अब आप इसको मेजर कैसे करोगे? बेटा मेजर करना बहुत ही इजी है. Again, where are you at market price? Where do you want to go at factor cost? Market price से अगर factor cost तक जाना है तो आपका 100 रुपीज मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट 150. तो बेटा आपको सब्सिडी को क्या करना पड़ेगा? ऐड. तो सर हमने इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों माइनस किया? बेटा क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स प्रोड्यूसर गवर्नमेंट को दे रहा है और वो एक ट्रांसफर पेमेंट है. गवर्नमेंट ने कोई गुड या कोई सर्विस क्रिएट नहीं किया है. दैट इज व्हाई इट इज अनअर्न्ड. और बेटा अनअर्न्ड इनकम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होता है. यस और नो? उसी की जगह पर सब्सिडीज ये गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को देती है.
बट प्रोड्यूसर को जो ये पैसा मिला है वो उसके मेहनत का पैसा है, अर्न्ड है, इसीलिए वो इंक्लूड होगा. एंड देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, indirect taxes are excluded while estimating national income and subsidies are included while estimating national income. इसका मतलब can I say national income is always measured at factor cost. Yes or no? And how do you measure it at factor cost? तो बेटा मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो आप वो माइनस करो जो अनअर्न्ड है और वो ऐड करो जो अर्न्ड है. सो बेटा मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज दे आर अनअर्न्ड प्लस सब्सिडीज बिकॉज दे आर अर्न्ड विल गिव यू factor cost. So my dear students, till now can I say we have completed what is national income. पहले हमने इनकम समझा, earned, unearned. फिर हम लोगों ने सीखा what is nation, country and an economy. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा what is economic growth and economic development. Then I also explained you what is false growth, what is real growth. उसके बाद हम लोगों ने देखा प्राइसेस कौन से ईयर के होने चाहिए, क्वांटिटी कौन से ईयर की होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा रियल नेशनल इनकम and nominal national income. And finally beta, the last concept that we have completed as of now is national income, whether it should be calculated at market price or it should be calculated at factor cost. अब हमने इतना सारा तामझाम, इतना सारा मेहनत क्यों किया? Because हम लोगों को पढ़ना है concepts in measurement of national income. So beta, what are the concepts in the measurement of national income? One of the most important topics, one of the most interesting topics, one of the most calculative topics. Beta याद है formulas, GDP, GNP, NDP, NNP, ये सारे concepts मैं यहां पर कवर करवाऊंगा. तो बेटा प्लीज गिव योर अटेंशन. सो डियर स्टूडेंट्स, let us now start with the concepts in measurement of national income. So beta, we all have heard the term GDP, gross domestic product. Now GDP at market price is equal to C plus I plus G plus X minus M. Now you must be wondering, sir, what are these short forms? Beta, C stands for consumption expenditure, I stands for investment expenditure, G stands for government expenditure, and X minus M stands for something called as exports minus imports. So beta, whenever we talk about national income is nothing else but C plus I plus G plus X minus M. I hope I am clear with that. But beta, when we are measuring this, can I say that GDP is measured at market price? Shall we be measuring it at market price? The answer is no. Sir, GDP should be measured at factor cost. Now, what will be the formula for factor cost? Very simple. C plus I plus G plus X minus M minus IT plus S. Why did we deduct indirect taxes? Because they are unearned. Why did we add subsidies? Because they are earned. And we always measure national income at a factor cost because we don't want the unearned portion and we want to include the earned portion. Now, beta, can I say that while measuring GDP,
we are using the word domestic, and domestic means goods produced within the country. But today, are we only producing within the country? No, there are services which are given outside the country. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मन हुआ, मेरे को कहीं से ऑफर आया, सर आप यूएस में आकर लेक्चर दीजिए, सर आप कनाडा में आकर लेक्चर दीजिए, सर युगांडा में, मेरे को गांडा नहीं रहे, युगांडा में जाकर लेक्चर लीजिए. सो बेटा, कैन आई से टुडेज वर्ल्ड देयर आर सर्विसेज which can be provided outside the nation by somebody who lives in India. Therefore, we study the concept of GNP at market price. Now, GNP means what? Gross National Product. And the formula is C plus I plus G plus X minus M plus R minus P. अब आप लोग बोलोगे सर ये R minus P क्या है? बेटा R minus P is receipts minus payments. This is X minus M for goods which are produced in the country and then exported or imported, and this is for services. So बेटा हम हमेशा ऐसा बोलते हैं कि goods can be exported and imported, but services का export import बोलना थोड़ा cheap sound करेगा. So that is why we use that services are rendered or taken, and for the services rendered or taken there is a concept of receipts minus payments. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूएस गया, वहां पर लेक्चर लिया, तो आपको क्या लगता है मैं सबको 1001 का कवर देकर आएगा कि सब लोगों से 1001 डॉलर का कवर लेकर आएगा? रिसीट्स होएगा ना बेटा. सो इफ आई गिव अ सर्विस इन अ कंट्री अब्रॉड अदर देन इंडिया, देन देयर विल बी रिसीट्स. बट तुम लोगों को भी इच्छा हुआ, नहीं सर हम लोगों को इंडियन प्रोफेसर से नहीं सीखना है, कोई बाहर वाले को बुलाओ. तो फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेसर आया रशिया से, कोई प्रोफेसर आया यूएस से, तो क्या वो तुमको 1001 का कवर देकर जाएगा कि तुम लोगों से लेकर जाएगा? मतलब अपने कंट्री के लिए पेमेंट्स होगा अगर सर्विसेज इंडिया में किसी बाहर वाले ने दिया तो. सो बेटा, एज ऑफ नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू 3 कॉन्सेप्ट: जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देन जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद जीएनपी एट मार्केट प्राइस. सो बेटा, बट नेचुरली नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? कैन आई से द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी जीएनपी एट अ फैक्टर कॉस्ट. So beta, when you are measuring it at factor cost, formula C plus I plus G plus X minus M plus R minus P minus IT plus S. So beta, what is the difference between domestic and national? Beta, domestic मतलब within the country, national मतलब within as well as outside the country. What is the difference between market price and factor cost? Market price includes taxes. I repeat, market price के अंदर taxes included है, market price के अंदर subsidies excluded है. देखो माइनस किया, देखो यहाँ पर प्लस किया. But when you calculate factor cost, indirect taxes are excluded because they are unearned. Subsidies are included because they are earned. So beta, the difference between market price and factor cost is nothing else but indirect tax and subsidies. Now the other problem that we face while estimating national income, we say that national income is the net aggregate, is the net money valuation of all the goods and services produced annually in a country. तो बेटा मैंने दो बार एक ही वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट किया, वो था नेट. जबकि हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े वो निकले ग्रॉस के. तो बेटा नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी एनडीपी एट मार्केट प्राइस.
Now what is NDP at market price? Net domestic product. Domestic मतलब within the country. So बेटा फॉर्मूला क्या आएगा? C plus I plus G plus X minus M minus depreciation. क्योंकि बेटा ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर जाना है तो डेप्रिसिएशन को तो डिडक्ट करना पड़ेगा. So beta, what is the difference between gross and net? It is the depreciation. Now, similarly, can I say there will be a formula called as NDP at factor cost? चलो सब लोग formula दो. Everybody, C plus I plus G plus X minus M minus IT plus S minus D. क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या फर्क है? माइनस आईटी प्लस एस का. ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है? माइनस डेप्रिसिएशन का. क्या अभी तक मैं नेशनल पर गया हूं? ना. तो बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस. एनएनपी एट मार्केट प्राइस, चलो फॉर्मूला दो. नेट national product at market price. Everybody, C plus I plus G plus X minus M. डोमेस्टिक है कि नेशनल है? नेशनल. तो प्लस R माइनस P एंड ग्रॉस के जगह पर नेट है मतलब माइनस डेप्रिसिएशन. And finally, my dear students, can I say that gross नहीं net चाहिए, डोमेस्टिक नहीं नेशनल चाहिए, मार्केट प्राइस नहीं फैक्टर कॉस्ट चाहिए? Yes or no? Gross we don't want, we want the net value because the definition of national income says that national income is the net money valuation of all the goods and services. Money valuation है इसीलिए तो हमने price multiplied by quantity किया था. Yes or no? So NNP at factor cost is equal to, चलो everybody, C plus I plus G plus X minus M plus R minus P माइनस आई टी प्लस एस माइनस डी. मतलब सब कुछ आ गया, बोलो स्वाहा. And therefore, can I say that this concept of NNP at factor cost is nothing else but your national income? A yes or no? Clear or not clear? Understood or not understood? I hope we are clear. So let me give you a quick revision. What are the concepts in measurement of national income? GDP at market is equal to C plus I plus G plus X minus M. C stands for consumer goods or consumption investment. I stands for investment goods or investment expenditure. G stands for government goods or government's expenditure. X stands for exports. M stands for imports. Then GDP at factor cost, C plus I plus G plus X minus M minus IT plus S, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पे था. क्या हम लोगों को डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए? नहीं, हम एक नेशनल इकोनॉमी है, देश के अंदर भी देश के बाहर भी सब जगह काम कर रहे हैं. So GNP at market price, चलो everybody, C plus I plus G plus X minus M plus R minus P stands for receipts minus payments. Now what does GNP at factor cost mean? C plus I plus G plus X minus M plus R minus P minus IT plus S. What is IT? Indirect tax. What is S? Subsidies. Indirect tax are excluded because they are unearned. Subsidies are included because they are earned. पर क्या हमें ग्रॉस वैल्यू चाहिए? नहीं, हमें नेट वैल्यू चाहिए. So NDP at market price is equal to C plus I plus G plus X minus M minus depreciation, क्योंकि ग्रॉस और नेट का डिफरेंस डेप्रिसिएशन होता है. Then NDP at factor cost, C plus I plus G plus X minus M minus IT plus S because it's at factor cost minus depreciation because it is the net value. Then net national product at market price, NNP at market price is equal to C plus I plus P plus X minus M plus R minus P. क्यों? because ये national product है. माइनस डेप्रिसिएशन,
क्यों? क्योंकि ये नेट वैल्यू है। माइनस IT प्लस एस कर दूं? कर दो। अरे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये अभी भी मार्केट प्राइस पे है। अगर माइनस IT प्लस एस करना है तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नहीं नेट चाहिए, डोमेस्टिक नहीं नेशनल चाहिए, मार्केट प्राइस नहीं फैक्टर कॉस्ट चाहिए। Yes or no? So what is the formula? चलो everybody जोर से, C plus I plus G plus X minus M plus R minus P minus IT plus S minus D. Clear or not clear? Understood or not understood? I am very confident that these concepts are crystal clear with you all. And to give you a little bit more clarity, चलो आप मुझे बताइए, national income will be measured at gross value or it will be measured at the net value? चलो बताओ मेरे को, it will be the net value. तो बेटा what is the base formula that we are going to use? Base formula, the base formula is C plus I plus G plus X minus M. Yes or no? अब हमने कहा कि ग्रॉस नहीं चाहिए, कहा कि नहीं कहा? ग्रॉस नहीं चाहिए तो ग्रॉस से जाना है नेट। अगर ग्रॉस से नेट जाना है तो माइनस डेप्रीसिएशन करना पड़ेगा इन द अबव फॉर्मूला। बोलो स्वाहा। क्लियर है? देन हम लोग क्या एक डोमेस्टिक इकोनॉमी है? नहीं, हम एक नेशनल इकोनॉमी है। तो अगर डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस R माइनस P। बोलो स्वाहा। R माइनस P को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं बेटा? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसका मतलब होता है कि द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो बाहर जाके काम करके आए, वो जो पैसा लेकर आएंगे उसे हम NFIA बोलेंगे। सो बाय डियर स्टूडेंट्स, please remember that NFIA is the income earned by the factors of production in a country outside India. Yes or no? So बेटा हमें पता है कि ग्रॉस नहीं नेट चाहिए, डोमेस्टिक नहीं नेशनल चाहिए। बताओ एक और चीज, मार्केट प्राइस पे मेजर करना है? ना। कैन आई से वी डोंट वांट इट एट मार्केट प्राइस, we want it at a factor cost. So beta over here if you see, gross we are not considering, domestic we are not considering, and we will neither consider market price. Then what do we want? The net value, the national value, and at factor cost. Therefore we said that NNP at factor cost is the नेशनल इनकम। सो बेटा अगर आप मार्केट प्राइस पे हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हो और सब्सिडीज को सबट्रैक्ट करते हो। मार्केट प्राइस इंक्लूड्स अनअर्न्ड एंड एक्सक्लूड्स अर्न्ड। नाउ दिस इज नॉट करेक्ट। अपने को चाहिए कि इट शुड एक्सक्लूड अनअर्न्ड माइनस इनडायरेक्ट टैक्स एंड इंक्लूड earned plus subsidies. That is the reason why we measure it at factor cost. अब बेटा प्लस ID माइनस S को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस minus subsidies, the effect that we get, the final result that we get is called as net indirect tax. So बेटा अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो आपको माइनस NIT करना पड़ेगा। अभी माइनस NIT का मतलब क्या बता देता हूं। माइनस ऑफ व्हाट इज NIT? NIT is net indirect tax and net indirect tax is indirect tax minus subsidies. अब बेटा अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी हो जाएगा।
जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर लिखा हुआ है। सो बेटा, whenever you are calculating national income, you need to understand that we want the net value, we want the national value, and we want it at factor cost. So बेटा, आपके रिवीजन के लिए मैं एक बार ये फॉर्मूलाज आपके सामने रख देता हूं। मैं ये फॉर्मूलाज पर नहीं देखने वाला हूं और आपको एक क्विक फायर रिवीजन दूंगा ऑफ द फॉर्मूलाज ऑफ measuring national income. So beta, GDP at market price is equal to C plus I plus G plus X minus M. GDP at factor cost, C plus I plus G plus X minus M minus IT plus S. GNP at market price, national product, C plus I plus G plus X minus M plus R minus P. यही चीज को फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड करना है, तो C plus I plus G plus X minus M plus R minus P minus IT plus S. बट ये सारे फॉर्मूलाज ग्रॉस पे है, मुझे सारे फॉर्मूलाज नेट पे चाहिए, तो अबव वाले फॉर्मूलाज में माइनस डेप्रिसिएशन आएगा. सो NDP at market price is equal to C plus I plus G plus X minus M माइनस डेप्रिसिएशन. फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M माइनस IT प्लस S माइनस डेप्रिसिएशन. सर नेशनल पे चाहिए तो क्या, NNP एट मार्केट प्राइस C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P माइनस डेप्रिसिएशन. एंड फाइनली बेटा, ग्रॉस नहीं नेट चाहिए, डोमेस्टिक नहीं नेशनल चाहिए, मार्केट प्राइस नहीं फैक्टर कॉस्ट चाहिए. तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P माइनस IT प्लस S माइनस D. This, my dear students, is nothing else but the concept of national income, where the base formula is C plus I plus G plus X minus M, and there are three adjustments from gross value to net value, from domestic value to national value, from market price to factor cost. Now students, यही सारे formulas का shortcut formula भी बन सकता है. Now what is a shortcut formula? अब मेरे को एक बात बताओ, GDP at market price and GDP at factor cost में फर्क किसका है? क्या ना इसे माइनस IT प्लस S का ही है? तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, सर can I say GDP at factor cost is equal to, I'll write it down here, GDP at market price minus IT plus S. This can be the formula. Yes or no? Then what can be the formula for GNP at market price? तो अगर आप देखो जितने भी फॉर्मूलाज है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, सारे फॉर्मूलाज के अंदर सेम ही है. हर फॉर्मूला के अंदर आएगा आएगा और आएगा. तो बेटा, द फॉर्मूला फॉर GNP is nothing else but GDP at market price plus R minus P. Yes or no? GNP at factor cost के लिए फॉर्मूला विल बी GNP at market price minus IT plus S. सो बेटा, इस तरीके से आप शॉर्टकट फॉर्मूलाज भी बना सकते हैं. I hope I am clear with that. Let me write down the shortcut formula for NDP at market price. It will be GDP at market price minus depreciation. What will be the formula for NDP at factor cost? So बेटा, NDP at market price, NDP at factor cost में minus IT plus S का फर्क आएगा. So NDP at market price minus IT plus S हो जाएगा. Then NNP at market price के लिए आप GDP से भी उसका शॉर्टकट फॉर्मूला निकाल सकते हो, आप NDP से भी निकाल सकते हो. I'll go with GDP over here. So GNP at market price minus depreciation will be NNP at market price. Yes or no? And NNP at factor cost is equal to NNP at market price minus IT plus S. So beta, the best way to learn the formulas is the long cut way, because if you know the long cut, you will definitely understand the shortcut formulas as well. I hope you are clear with the concepts of measurement in national income. Now
लेट अस अंडरस्टैंड द सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। क्या बोला बेटा? लेट अस अंडरस्टैंड द सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। तो बेटा ये सर्क्यूलर फ्लो क्या होता है? तो इसके लिए बेटा देर आर सर्टन assumptions. Let us assume that there are two sectors. One is the household sector and the other is business firm. So बेटा अपने इकोनॉमी के अंदर there are two sectors, एक हाउसहोल्ड सेक्टर, एक बिजनेस सेक्टर. Now it is believed that household sector is the provider of factors of production to the business sector. हाउसहोल्ड वाला लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बिजनेस सेक्टर को प्रोवाइड करेगा और बेटा इन रिटर्न बिजनेस सेक्टर उनको करेगा फैक्टर पेमेंट्स. फैक्टर पेमेंट्स का मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. यस और नो? सो बेटा कहना है से हाउस होल्ड्स ने बिजनेस सेक्टर को क्या दिया? क्या दिया? क्या दिया? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिया. इन रिटर्न क्या बिजनेस सेक्टर ने उनको पेमेंट दिया? हाँ. मतलब कहना है इसे households will give the factors of production, business sector will make the factor payments. अब आप मुझे बताइए बिजनेस सेक्टर के पास अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आ गया तो वो उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से गुड्स एंड सर्विस बनाकर हाउस होल्ड को बेचेंगे. So can I say with the help of factors of production, the business sector will sell the goods and services to the household sector. बस खत्म, बर्बाद नहीं बेटा. अब हाउसहोल्ड सेक्टर को भी तो यहां पर एक्सपेंडिचर होगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. सो बेटा can I say over here you can see that there are two circles. One is the outer circle and the other is the inner circle. Now when you see in the inner circle, can I say this is rent, wages, interest and profit in terms of money. Expenditure on goods and services is also money. तो बेटा ये जो अंदर घूम रहा है वो है मनी. मतलब ये है मनी का फ्लो, पैसे का फ्लो. बट बाहर जो फ्लो हो रहा है क्या ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पैसा है? नहीं. क्या ये गुड्स एंड सर्विसेज पैसा है? नहीं. मतलब कैन आई से द आउटर फ्लो इज द रियल फ्लो. सो बेटा सर्क्यूलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में कितने कॉन्सेप्ट्स हैं? दो. एक मनी फ्लो, एक रियल फ्लो. अब अगर मैं वापस तुमको बताऊं हाउस होल्ड सेक्टर विल गिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, देन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बिजनेस सेक्टर विल रीपे. यस और नो? अब ये जो पैसा, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिला है उससे कैन आई से बिजनेस सेक्टर विल सेल द गुड्स एंड सर्विसेज टू हाउस होल्ड एंड household sector has to pay the money to the business sector. Yes or no? Clear or not clear? I hope that the flow of national income is clear. In the diagram you see there are two circles. One is the inner circle, one is the outer circle. अब बेटा देखो बहुत सारी जगहों पर you may see that money flow is shown outside and real flow is shown inside. Beta either ways it is correct. Should not be a problem whether you show the money flow first or the real flow first. Now beta if I have to tell you once again, household sector will provide what? Factors of production to business sector. Business sector will make a payment to the household. Then household sector will receive goods from the business sector for which the household sector has to make a पेमेंट. तो बेटा ये जो सर्क्यूलर फ्लो है ये समझना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसके अंदर दो फ्लो है, एक मनी फ्लो, एक रियल फ्लो. अब आप मुझे सोचकर बताइए बेटा आउट ऑफ मनी फ्लो
and real flow, which flow is more important? पैसा का फ्लो होना ज्यादा जरूरी है कि रियल फ्लो होना जरूरी है? तो बेटा इन दिस एंटायर चैप्टर वी हैव ऑलवेज गिवन इंपॉर्टेंस टू द रियल वर्ड. एंड बेटा रियल फ्लो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर रियल फ्लो होगा तो मनी फ्लो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. अगर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली पैसे का एक्सचेंज बढ़ेगा. सो बेटा कैन आई से रियल फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ द रियल फ्लो इंक्रीजेस द मनी फ्लो विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज. But I cannot say the same for money flow and real flow. If the money flow increases, is it compulsory that the real flow increases? No, because money flow can increase due to the rises in prices. अगर भाव बढ़ गए, अगर प्राइसेस बढ़ गए तो भी मनी फ्लो तो बढ़ सकता है. मनी फ्लो के बढ़ने के वजह से रियल फ्लो नहीं बढ़ेगा, बट रियल फ्लो के बढ़ने के वजह से मनी फ्लो डेफिनेटली बढ़ेगा. एंड देयरफॉर माय स्टूडेंट्स, रियल फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मनी फ्लो. नाउ व्हाट डू यू सी ओवर हियर? कैन आई से दिस इज, oops, I'll do undo कर देता हूं, एक सेकेंड. I'll just redraw this one. So बेटा यहां पर भी अगर आपने देखा रहेगा तो पहले एक आउटर सर्कल था, फिर एक इनर सर्कल था. यस और नो? अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व बेटा ओवर हियर? जरा ध्यान से देखो. कैन आई से दिस इज एक्सपेंडिचर. देन over here can I say that this is the income for the people? So यहाँ पर इनकम हो गया. और ये इनकम और एक्सपेंडिचर क्यों हो रहा है? बिकॉज देर इज एन आउटपुट. एंड बेटा इफ यू रिमेंबर आई हैड टोल्ड यू दैट इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू आउटपुट. और बेटा इससे ये समझ में आता है कि दीज आर द थ्री मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड होता है. So dear students, if you recollect, at the start of this lecture itself, I had explained you that income is equal to expenditure. दिख रहा है क्या? Income is equal to expenditure is equal to output, which I have proved again at the end of the lecture with the help of circular flow of national income. I hope we are clear with it. Thank you so much.